Hello, everyone, and welcome to the session on democracy. In the last session, we have seen the meaning of democracy and the kinds of democracy. As I told you, demos plus kratos, these two Greek words, when come together, it creates the word democracy. Demos means the people, and kratos means the power. So, if we talk about the definitive part that we did in the last session, then democracy is that form of government in which the ruling power of a state is legally vested, not in any particular class or classes, but in the members of the community as a whole. With that, we have covered kinds of democracy, direct and indirect democracy. Direct democracy means when the people themselves directly express their will on public affairs, then the type of government is called pure or direct democracy. So, pure or direct democracy is two different terms, but it means the same. First, indirect democracy or representative democracy. So, in a representative or indirect democracy, the will of the state is formulated and expressed not directly by the people themselves, but by their representatives to whom they delegate the power of deliberation and decision making. In today's session, we'll talk about the conditions for the success of democracy. So, ऐसी कौन सी conditions होती है जो required होती है जिससे democracy successfully implement हो सके और इन conditions के बारे में आज हम देखेंगे और जानेंगे. So, to make the democracy a success in any country, there are few conditions which is to be fulfilled. The first one is sound system of education. So where there is illiteracy, it becomes difficult to make democracy successful. अब जहां पर अनपढ़ लोग होते हैं वहां पर डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल होता है. क्यों मुश्किल होता है? Because many qualities are needed to make democracy a success. Because there are a lot of qualities which are required जिससे democracy establish हो सके और वो successfully establish भी हो सके. So the citizens can acquire these qualities only through literacy. अब जो क्वालिटी से एकदम से जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे तो आ नहीं जाती है. इन क्वालिटीज को एक्वायर करने के लिए सिटीजन्स को पढ़ना लिखना जरूरी है. जब कोई भी नॉर्मल इंसान पढ़ाई करता है तो धीरे धीरे आप देखते हैं जो कोर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है वो सेकंड स्टैंडर्ड में आके चेंज हो जाता है. तो धीरे धीरे बच्चे को थोड़ी थोड़ी चीजें हर साल हर क्लास में सिखाई जाती है. इसीलिए स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग टाइप के एजुकेशन और कोर्सेज बनाए गए हैं. The citizens can acquire these qualities through literacy. इसीलिए कहा गया है कि citizens ये सारी qualities literacy से acquire कर सकते हैं, पढ़ाई से acquire कर सकते हैं. So the people should have the sense of understanding political problems. अब लोगों में ये समझ होनी चाहिए कि political problems actual में होती क्या है. They should possess such qualities as sacrifice, sympathies, selfless service of the country, discipline, fraternity. So हमेशा citizens को अपना representative चुनते वक्त select करते तब कुछ qualities को ध्यान में रखना होता है, कुछ qualities अपने अंदर possess करनी होती है, जैसे sacrifice, sympathies, selfless service, patriotism, your devoteedness towards your country, fraternity, and etc. So as far as possible, education should be free and the rich and the poor should be given equal opportunity for their development. So इसीलिए हर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है कि एजुकेशन हमेशा फ्री होनी चाहिए. तो हमारे इंडिया में भी देयर इज राइट टू फ्री एजुकेशन एंड दैट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So this free education will provide equal opportunities for development to the rich also and to the poor people also. So the citizen should strive for mental and physical development through education. अब इस education से, free education से क्या होता है, बच्चों का mental और physical development दोनों ही एक साथ simultaneously होता है. They should be able to learn their livelihood through education. So now the students by this education learn कि उनको कैसे अपना livelihood आगे settle करना है future में इस पढ़ाई के आधार पर. Unemployment shall prove
हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। सो इसीलिए ये भी कहा जाता है, एक और पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एजुकेटेड इंसान अनएम्प्लॉयड रहेगा तो फिर वो करेक्ट डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएगा। Ideal citizens are prepared through education, without which democracy can't become successful. So from an ideal citizen, that is expected that they are prepared by their education to elect their representative in a democratic state. That's why sound system of education is the utmost requirement and condition for the success of a डेमोक्रेसी। अब आपको समझ में आया कि एजुकेशन सिस्टम का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है, दैट इज एनलाइटेंड सिटीजनशिप। सो पीपल शुड हैव द नॉलेज टू देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। अब जो भी सिटीजन है, जो भी लोग होते हैं एक देश के, उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज दोनों के ही बारे में जानकारी होनी चाहिए टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस। अब अगर लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जानकारी होगी तो वो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। अब वोट करना हमारा अधिकार है, अगर उनको जानकारी होगी तभी तो वो जाके वोट डाल पाएंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर उनको अपनी ड्यूटीज पता होगी तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी काम से कानून का उल्लंघन हो सके। So long as the citizens do not perform their duties, the question of the success of democracy can't arise. तो जब तक लोग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। If the performance of duties is essential, it is equally essential for the citizens to become conscious of their rights. So अब इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ही परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि जो जनता है उनको अपने राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज राइट्स और ड्यूटी आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, without which there is every possibility of the government become autocrat. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपका अधिकार क्या है तो ये हो सकता है गवर्नमेंट अपनी मर्जी चलाने लगे, गवर्नमेंट आर्बिट्ररी एक्शन लेने रखे और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे आवाज उठाएंगे, आपके पास क्या राइट दिया हुआ है। So that's why we can say that internal vigilance is the price of liberty. अगर हम जागरूक होंगे तो ही हम आजादी का लुत्फ उठा पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इंटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आजादी की कीमत है जागरूकता। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है पॉलिटिकल अवेकनिंग। सो इट इज एसेंशियल टू इनकलकेट पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द सिटीजंस टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस। अब ये भी बहुत जरूरी है कि हर जनता में पॉलिटिकल अवेकनिंग होनी चाहिए। क्या दुनिया में हो रहा है, कैसे सरकार खड़ी होती है, कैसे वोट करना होता है, आपके क्या अधिकार है, आपका क्या रोल होता है इलेक्शन में, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो किसी भी अनपढ़ भोले व्यक्ति को कोई भी अपनी बातों में फंसा के उसका वोट ग्रैब कर लेगा। सो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल अवेकनिंग इज वेरी नेसेसरी। Where there is no political awakening, the citizens fail to understand the political problem. जहां पे political awakening नहीं होती है, इन questions के बारे में जानकारी नहीं होती है, वहां पे जनता हार जाती है इन problems को समझने में कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो ये समझ ही नहीं पाती है। They are also unable to elect their representatives properly. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी में इतना दिमाग नहीं है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इलेक्शन क्यों होते हैं, वोट क्यों देना, इन सब क्वेश्चंस के आंसर उसके पास नहीं है, तो उसे कोई भी अपनी बातों में फंसा के उसका वोट किसी के भी नाम पर डलवा सकता है। सो इससे क्या होगा, दैट दे विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है क्या और उन्हें किस अच्छे व्यक्ति को, किस अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को अपने लिए चुनना है, वो भी वो निर्णय लेने के काबिल नहीं रहेंगे। So political disinterestedness does not help any citizen understand the economic political problems of the day and contribute there to the implementation of various national plans, defense efforts of the country. So अब ये जो political knowledge है, ये जो interest होना चाहिए citizen का, ये हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो national plans
जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, अब हर चीज गवर्नमेंट करती किसके लिए है? जनता के लिए करती है। अगर उनको नॉलेज ही नहीं होगी तो वो ये समझ ही नहीं पाएंगे, इस चीज का महत्व ही नहीं समझ पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। जो प्लान अगर गवर्नमेंट ला रही है उससे उनका कोई फायदा है भी या नहीं है, उनको उस चीज में एनरोल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उनमें इस चीज की समझ नहीं होगी। इसीलिए पॉलिटिकल नॉलेज या फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग इज अ मस्ट फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज फ्रीडम, आजादी। Democracy guarantees the citizen the freedom of expression, freedom of profession, freedom of religion, freedom to form association. अब डेमोक्रेसी सिटीजन्स को कुछ नैतिक राइट्स देती है, कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड एक्सेट्रा। सो इससे क्या होता है, अगर हमें इन फ्रीडम्स की जानकारी होगी तो हम इनका फायदा उठा सकेंगे, लाइक वी विल बी एबल टू एंजॉय इट। अगर हमें पता होगा कि हमें बोलने का अधिकार है तभी तो हम हमारा पक्ष रख पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें बोलने का अधिकार, तो हम तो चुप ही बैठे रह जाएंगे और हमारे बिहाफ पे कोई और डिसीजन लेता रहेगा और हम उसे मानते रहेंगे। A free and fearless press is the basic need of democracy in order to keep under the check autocratic activities of the government. So, इसीलिए एक फ्री और फियरलेस प्रेस, मतलब जो ये जर्नलिज्म है ये बिल्कुल फ्री और फियरलेस होना चाहिए, इसलिए राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, जिससे जर्नलिस्ट हमेशा सच को सामने ला सके। वो ये रूप गवर्नमेंट का दिखा सके, गवर्नमेंट कोई गलत एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट अपना फायदा कर रही है, गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, तो न्यूज चैनल वाले क्या कर सकते हैं, उस सच को सामने ला सकते हैं। इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन and all that things are given. In the countries where press is not free, citizens can't criticize the government with the result that they can't fully enjoy much freedom. अब जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता है वहां सिटीजन्स को पता ही नहीं होता है गवर्नमेंट क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है, तो गवर्नमेंट के सारे एक्शंस को वो क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, उसमें उनकी अच्छाई और बुराई वो देख ही नहीं पाते। इन रशिया, चाइना एंड अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज द प्रेस इज नॉट फ्री। अब ये जो रशिया, चाइना और दूसरी कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इन कंट्रीज में देयर इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इवन आप चाइना में देखेंगे तो ग्रेट वॉल इज देयर जो इंटरनेट को ब्रेक करके रखता है। तो चाइना से कौन सी ग्रेट वॉल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज देयर? सो जो चीजें ब्रॉडकास्ट चाइना के बाहर होनी या नहीं हो रही उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ऐसी कोई चीज बाहर नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? बिकॉज वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उन लोगों को अपनी मर्जी से अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। सो डेमोक्रेसी डज नॉट रिकॉग्नाइज क्लास डिस्टिंक्शन। अब डेमोक्रेसी ये कभी नहीं कहती है कि अमीर और गरीब में भेदभाव करना चाहिए, किसी भी लोगों को किसी भी क्लास में डिवाइड नहीं करती है कभी भी डेमोक्रेसी। इट इज बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी हमेशा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड होती है। In democracy, all are equal before law and there is no discrimination on the basis of caste, color, religion, sex, economic status. हमेशा डेमोक्रेसी में सब लोगों को समानता देखा जाता है, कानून की आंखों में सब इक्वल है, किसी भी तौर का भेदभाव नहीं किया जाता है, ना ही उनके कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स या इकोनॉमिक स्टेटस के क्राइटेरिया में। जो गलत है वो गलत ही माना जाता है, ये नहीं कि अमीर है तो उसने अगर कोई गलती करी तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। Economic equality does not mean that everybody should be given equal emoluments. It means equality of opportunity and a fair and open field for all. अब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सबको सेम रेम्युनरेशन प्रोवाइड होगी, सबकी सैलरी सेम होगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबको फेयरली ट्रीट किया जाएगा, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी इंश्योर सोशल जस्टिस। अब इससे क्या होता है, सोशल जस्टिस इंश्योर हो पाता है। सपोज कोई डॉक्टर है तो एमबीबीएस डिग्री वाले को ही उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसे थोड़ी कि बीटेक करे हुए व्यक्ति को डॉक्टर की पोस्ट दे दी जाएगी। इससे फेयरनेस नहीं स्टैब्लिश हो पाएगी।
So this kind of equality ensures social justice, which is the very life breath of a democracy. Equality means giving everybody right to vote and contest election irrespective of caste, religion, property, sex, color or creed. डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होता है. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, so we also have universal adult franchise. Every major person has a right to vote. So who is a major? A person who is having the or acquired the age of 18 years. और एज ऑफ मेजॉरिटी डिसाइड होती है इंडियन मेजॉरिटीज एक्ट के द्वारा. नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर. So the maintenance of law and order in society by the government is another essential condition for the success of democracy. Anarchy prevails where government fails to maintain law and order and the people's faith in government is shaken. So they look towards dictatorship in order to get rid of anarchy. जहां पर पीस स्टैब्लिश होती है, जहां पे कानून का सम्मान होता है, वहीं पर डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है. नेक्स्ट, फर्दर कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी आर spirit of cooperation, decentralization of power and high moral standards. So we'll have a look at them one by one. Spirit of cooperation means every democracy has to face many economic, social, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा कुछ इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. इन डिक्टेटरशिप दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द डिक्टेटर अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल. अब डिक्टेटरशिप में एक इंसान का रूल चलता है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. इन एब्सोल्यूट मोनार्की द सिचुएशन इज सिमिलर टू डिक्टेटरशिप बट इट डिफरेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी. एब्सोल्यूट मोनार्की में डिक्टेटरशिप से सिमिलर ही होती है सिचुएशन, बट डेमोक्रेसी से अलग होती है. इन डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट कांट एक्ट आर्बिट्ररली, बट दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द पीपल. अब डेमोक्रेसी में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं खुद, और वो प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं. वो प्रतिनिधि मिलकर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बाद फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट और जो प्रधानमंत्री जी है वो अपनी मर्जी से जो उनके मन मुताबिक आएगा वो डिसीजन लेंगे. ऐसा नहीं होता है. जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुना है, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, उन लोगों की मर्जी के अनुसार ही वो निर्णय लेंगे. और जो ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है, ये किसकी विल रिप्रेजेंट करते हैं? ये जनता के हित की विल रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज उन्हें इलेक्ट कौन करता है? पब्लिक उन्हें इलेक्ट करती है. These problem can be solved by the cooperation of the people. So अगर जनता कॉपरेट करेगी तो कॉपरेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम. अब आप एक चीज बताइए कि ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होती है? अगर हम इंडिया कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में कितनी सारी कास्ट है, कम्युनिटी है, कितने सारे धर्म है, जैन है, हिंदू है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है. तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स, अपनी अलग नीड्स होती हैं. अगर हम हिंदूज में देखें तो हिंदू दिवाली मनाते हैं. ऐसा नहीं है कि मुस्लिम दिवाली नहीं मनाते, पर मुस्लिम्स ज्यादा प्रेफरेंस ईद को देते हैं. सो इन्हीं सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, सबकी पब्लिक की सारी विल्स को अकोमोडेट करने के चक्कर में ये प्रॉब्लम्स अराइज होती है. और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कॉपरेशन से ही हो सकता है. So democracy can flourish only if there is no big gap between the thinking of the people and of the government. So democracy तभी सक्सेसफुल होगी जब कोई भी गैप नहीं होगा लोगों की सोच में और सरकार की सोच में. And when there is a spirit of cooperation between them. So there should be a spirit of cooperation between the public and the government to result in a successful democracy. Next is decentralization of power. So this decentralization of power and local self-government, for the success of a democracy, decentralization of power is essential. The concentration of power makes the government autocratic. अब decentralization of powers means separation of power. इसलिए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर नहीं होना चाहिए. पावर्स डिवाइडेड रहने चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक जना दूसरे जने पे नजर रख पाएगा. इसलिए चेक और बैलेंस मैकेनिज्म बना रहेगा. इसलिए इसमें कोई भी एक व्यक्ति अगर उसके पास ज्यादा पावर होगा तो वो फायदा उठाएगा,
वो अपनी मर्जी का करेगा, पर अगर सबके बीच में पावर्स डिवाइड होगा तो सब एक दूसरे पे नजर रख पाएंगे. So with the division of power between the center and the province, the burden of the center is reduced and the province get autonomy, which ultimately brings efficiency in the administration. With the introduction of local self-government, people take interest in the administration and they give full support to the government. अब देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज, जो गांव ढानियों में होता है. अब इससे क्या होता है कि वही गांव के रहने वाले लोगों में से 5 लोग चुने जाते हैं, उसमें से एक सरपंच होता है, वही वहां की प्रॉब्लम्स पे डिसीजन लेते हैं. इससे क्या होता है, इससे पावर्स डिवाइडेड रहते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भार है वो भी कम होता है. बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है. पावर्स हर जने में जितना रिक्वायर्ड होता है डिवाइड कर दिया गया है. इससे डेमोक्रेसी में सक्सेस इसलिए आता है बिकॉज हर जना अपना अपना काम करता है, हर व्यक्ति अपनी पोस्ट के अनुसार अपने पावर्स को यूज करता है, उससे वक्त पे काम होता जाता है. इससे पब्लिक खुश रहती है. जब जनता खुश रहेगी तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश रहेगी. Next is high moral standard. So success of democracy also depends upon the high moral standards of the people as well as of the government. हमेशा हर जने का थिंकिंग स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम नीची जात के हो इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे. ये छोटी सोच मानी जाती है. Where there is dishonesty, black marketing, hoardings and smuggling, where the ministers and public servants are corrupt, the question of the success of democracy does not arise. So, जहां पे करप्शन होता है, स्मगलिंग होती है, डिसऑनेस्टी होती है, वहां पर कभी भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. इसलिए अच्छी क्वालिटीज जिन लीडर्स में होती हैं उन्हीं को हमें चुनना चाहिए, जिससे वो हमें अपनी अच्छी क्वालिटीज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके और ऑनेस्टली रिप्रेजेंट कर सके. People should have the spirit of patriotism, discipline, self-control, honesty in payment of taxes, and willing obedience to the laws of the land. अब जनता में और गवर्नमेंट दोनों के अंदर अपने देश के प्रति डिवोटीनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि वो कुछ गलत ना करे. The government should follow the ideal of service to the community because a welfare state and a democracy are two inseparable things. अब जो गवर्नमेंट है उनको भी अपने आइडल्स जो होते हैं उनको कम्युनिटी के टुवर्ड्स पूरे करने पड़ते हैं. अब इससे वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश होती है और वेलफेयर स्टेट और ये आइडल्स है, ये दोनों कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते. डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. Next is social and economic security. Economic security is essential for the success of democracy. The people should be given the right to work, and it is the duty of the government to provide them with suitable employment. अब conditions for the success of democracy में ये जरूरी है हमेशा कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए, लोगों को उनके काम करने का अधिकार मिलना चाहिए और गवर्नमेंट भी अपनी ड्यूटी निभाए कि सबको सुटेबल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. So in case the government is unable to provide it to the people, it should at least provide them with shelter, clothing and food. पर अगर गवर्नमेंट सबको काम रोजगार देने में सक्षम नहीं भी हो पाती है तो तब भी गवर्नमेंट की ये एक प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें, एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमेशा जनता की पूरी करेंगी. In Russia and in many other communist countries, the government has given this right to the people in their constitution. अब रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत दूसरे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक नैतिक अधिकार लोगों को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा. Our government should also recognize this right of the people for the success of democracy in our country. So हर गवर्नमेंट को ऐसा राइट रिकॉग्नाइज करना चाहिए. Beside all this, social security is also essential. इस सब के बावजूद सामाजिक सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है. Nowadays, the government fixes hours of work, salary, bonus, paid holidays, and compensation for fatal accident in order to save the laborers from exploitation by the capitalists. अब सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग लेजिस्लेशंस बनाई है. इक्वल पेपर, इक्वल वर्क है,
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है हमारे यहाँ पे, लेबर लॉस है। इससे क्या है, हर जने को कुछ जगह घंटे के अनुसार पेमेंट दिया जाता है, बोनस का प्रोविजन है, पेड हॉलीडेज है, जैसे पीएल होती है, पेड लीव। अगर आपने छुट्टी नहीं ली है, आप छुट्टी के वक्त काम कर रहे हैं, तो वो आपको बाद में उस लीव का एक पर्टिकुलर अमाउंट रिटायरमेंट टाइम को पे कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें, इंश्योरेंस, कंपनसेशन, ये सारे प्रोविजन इसलिए बनाए गए जिससे किसी भी लेबरर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। The governor should provide social security to the people in case of their being disabled due to old age, illness, accident or any other cause। अब गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, किसी बाय बर्थ है, एज के कारण है, किसी बीमारी के कारण हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है, किसी और रीजन से हुआ है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उनको भी वो इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उन्हें भी इक्वल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। इसीलिए हमारे इंडिया में दिव्यांगों के लिए अलग से लॉ बना हुआ है। विदाउट दीज प्रोविजन डेमोक्रेसी शैल बी कंसिडर्ड यूजलेस। अगर ऐसे प्रोविजंस नहीं होंगे, जैसे इन लेबरर्स की सिक्योरिटी के लिए है, दिव्यांगों की सिक्योरिटी के लिए है, हर व्यक्ति की सिक्योरिटी के लिए जो लॉज बनाए हुए, अगर ये प्रोविजंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। People in Russia have full social security. In India too, some concrete steps have been taken in this direction. रशिया में तो बहुत पहले से ये सारी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस थे। इंडिया में भी बाय टाइम अगर आप देखेंगे सोशल लेजिस्लेशन धीरे धीरे करके आज हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन है जो लेबरर्स का, हैंडीकैप पीपल का, सबका प्रोटेक्शन कर रही है। इवन वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे राइट्स है, चाइल्ड वेलफेयर राइट्स आर देयर। सो इन ऑल एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी is getting some kind of protection। उनके लिए अलग स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाई गई है। लाइक आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ले लीजिए, तो वो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, तो हर क्लास ऑफ पीपल के लिए हर एरिया में एक अलग लेजिस्लेशन बनाई गई, जैसे सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों ही स्टैब्लिश हो पाए, और ये स्टैब्लिश रहेंगी तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी। Next is tolerance and spirit of unity. It is the responsibility of the people to make democracy a success. अब ये लोगों की ड्यूटी होती है कि डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। For this, the spirit of tolerance and unity is needed. अब इसके लिए spirit of tolerance और unity, एकता बहुत जरूरी है। In a country like India, where we have a number of religion, languages and caste, and where we find a disparity between the rich and the poor, these qualities are very essential। अब भारत जैसे देश की बात करी जाए जहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी एथनिक कल्चर है, वहां पे अनेकता में एकता वाली भावना की बहुत रिक्वायरमेंट है, नहीं तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं रहेगी। In spite of mutual disagreements, the people should join together to face a national crisis। बहुत सारे भेदभाव होने के बाद भी जब भी जरूरत पड़ती है तो सब लोग साथ मिलकर हर प्रॉब्लम का सामना करते हैं। In case of foreign aggression, the people should forget their differences of caste, religion, language, and province and try to preserve the freedom of their country with a spirit of devotion and sacrifice। जब भी वॉर या एग्रेशन की सिचुएशन होती है तब हमें हमारे इंटरनल डिफरेंसेस को भूल के साथ में आके एकजुट होकर हर समस्या का सामना करना चाहिए। That's why tolerance and spirit of unity is a utmost condition for the success of democracy। 12th condition is sound party system। In a democracy, difference in views is not only tolerated but it is encouraged। अब डेमोक्रेसी में डिफरेंस और व्यू सिर्फ टॉलरेट ही नहीं किया जाता है, एनकरेज भी किया जाता है। बिकॉज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन डेमोक्रेसी, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। फॉर दिस रीजन मैनी पार्टीज क्रॉप अप इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। इन द कंट्रीज वेयर देयर इज ओनली वन पार्टी and where other parties are banned, democracy can't develop, only dictatorship develops there। जहां सिर्फ एक पार्टी को महत्व दिया जाता है, बाकी सबको बैन कर दिया जाता है, वहां पर डेमोक्रेसी कभी डेवलप नहीं हो सकती है। It happened in Germany
during the time of Hitler. In Italy, it happened during the time of Mussolini. So this type of dictatorship was found in Russia, China, East Germany, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, and Poland. In order to make a democracy a success, a healthy and influential opposition is a must. Otherwise, the ruling party will become an autocrat. अगर ऐसा नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी जो है वो एक आर्बिट्ररी डिसीजन लेने लग जाएगी और वो ऑटोक्रेटिकली बिहेव करने भी लग जाएंगी. So the opposition keeps a check on the autocratic activities of ministers. So opposition parties क्या करती है, वो एक check और balance mechanism बना के रखती है और वो check करती है कि दूसरे जो ministers है वो गलत decision ना ले. Without it, there is a very likelihood of them using power corrupt. अगर ऐसे चेक और बैलेंस मैकेनिज्म नहीं होगा तो ये बहुत जरूरी हो सकता है कि वो अब्यूज ऑफ पावर कर सके, अपने जो पावर्स उनको दिए गए उनका वो गलत फायदा उठा सके. जैसे अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो एकदम से इंडिया में तीसरी इमरजेंसी लागू कर दी गई थी 1975 में. इंदिरा गांधी जी की बात मानते हुए प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने रातों रात इमरजेंसी लागू कर दी थी और उस इमरजेंसी के वक्त बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज का फायदा उठाया गया. एंड आफ्टर द एंडिंग ऑफ दैट इमरजेंसी ड्यूरेशन there were new legislation which came into existence. So अब fundamental rights को emergency duration में आप नहीं suspend कर सकते हो. There are few fundamental rights which can't be suspended even during the emergency period. Where there are many parties, the legislature is divided into many small groups and no single party is in a position to form the government. So the result is that coalition government has installed which is not stable. कभी कभार कुछ पार्टीज सत्ता में नहीं आ पाती तो सारी पार्टियां एकजुट होकर मर्ज होकर ही गवर्नमेंट बनाती. तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, जब तक वो सपोर्ट करे तब तक तो गवर्नमेंट है और जैसे ही सपोर्ट हटाता है कोई भी, सरकार गिर जाती है. So, इसीलिए ये जरूरी है कि साउंड पार्टी सिस्टम होना चाहिए वरना डेमोक्रेसी का रोल खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो हर चीज लिखित में अवेलेबल है. अगर कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्रिंज हो रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. जैसे कि हमारे इंडिया में वी हैव आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन by which we can directly approach the Supreme Court and as well as the High Court respectively for the implementation of our fundamental rights. So for the successful functioning of democracy, people are given fundamental rights and written constitution are introduced with a view to checking autocratic activities of the government. So ये जो written constitution है ये government के arbitrary decisions को पे check और balance mechanism बना के रखती है. Where there is no written constitution, the government can extend and exercise power in an autocratic manner. With that, independence of judiciary is also very much important. Democratic स्टेट में जैसे हम इंडिया की बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन ब्रांचेस हैं और इसमें तीनों ही ब्रांचेस अपने आप में अपना अपना काम कर रही है. जुडिशरी अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, लॉज के बेस पे डिसीजन लेती है, वो कभी भी एग्जीक्यूटिव की बातों में आके डिसीजन नहीं लेती है. सो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोथ प्लेस अ वेरी वाइटल रोल. जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करती है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. So the independence of judiciary from the control of executive has been granted by the constitution. Where judiciary is not independent, there is no guarantee of fundamental rights to the people and the constitution becomes useless. अगर judiciary independent नहीं तो constitution की provision का कोई importance नहीं, it's just a waste. So this is the condition in Russia, China and many other communist country also. India में we have written constitution and independence of judiciary. Next important condition for the success of democracy is impartial election. So independent, impartial and periodical elections also plays a very important role for the success of democracy. Independent, impartial and periodical election help in establishing faith of the people and the opposition in democracy. Otherwise, the opposition party will not get an opportunity for the
coming the government, and there will be no respect for public opinion. In the absence of independent, impartial, and periodical election, the opposition party shall try to change the government by revolution with the help of military or by the use of violent force. अगर impartial, independent और periodical election वक्त के अनुसार होते रहेंगे तो कभी भी लोग आक्रोश नहीं जताएंगे, कभी भी मिलिट्री का या फिर कोई वायलेंट फोर्स यूज करके सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे. लाइक इन पाकिस्तान, इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड फॉर मेनी ईयर. पाकिस्तान में बहुत वक्त इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इट रिजल्टेड दैट मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्टेड. वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री शासन स्टार्ट हो गया और उसके कारण जनरल अयूब खान ने स्टैब्लिश किया 1958 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप और इसी से डेमोक्रेसी को उन्होंने खत्म भी कर दिया. Next is political security. Now, political security also plays a very important role for a successful. How it plays a very important role? Because political security, good administration, economic prosperity, and wise leadership. These all are ringmost and interlinked with each other. Efficient administration is another condition for the success of a democracy. In fact, the success of democracy depends upon efficient administration. हमेशा successful democracy अच्छी गुड एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करती है. अगर आप अच्छे से सरकार गवर्नेंस करेंगे तो आपके बाद में वापस से सत्ता में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज अच्छी गवर्नेंस प्रोस्पेरिटी देगी लोगों को और वो अच्छे लीडर ही अच्छे नेतृत्व में ही कर सकते हैं. पीपल्स फेथ इन डेमोक्रेसी इज शेकन इन अ करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन. जहां करप्शन होता है वहां पे जनता का ट्रस्ट और फेथ नहीं रहता है. So political security is also essential because people start feeling the necessity of dictatorship. पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है बिकॉज अगर वो नहीं होगी तो वहां पे लोगों को डिक्टेटरशिप की बू आने लगेगी. For democratic government is unable to protect the sovereignty and integrity of the country at the time of foreign invasion. If a government fails to remove the scarcity of essential commodities, the price of these commodities are abnormally high. If people starve owing to objectivity, the people's faith in democracy is shaken. अगर गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाती रहेगी और लोगों के बारे में नहीं सोचेगी तो इससे क्या होगा? इससे जनता का जो विश्वास है वो सरकार से उठ जाएगा और जो डेमोक्रेसी का जो वेरी एसेंस है वो खत्म हो जाएगा. इसीलिए एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए ये 15 कंडीशंस बहुत जरूरी है जो मैंने आपको आज बताई है. साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एनलाइटेंड सिटीजनशिप, पॉलिटिकल अवेकनिंग, फ्रीडम, equality, law and order, spirit of cooperation, decentralization or separation of powers, local government, high moral standards, social and economic security, tolerance and spirit of unity, patriotism, sound party system, written constitution, independence of judiciary, independent, impartial and periodical elections, political security, good administration, economic prosperity and wise leadership. So I hope आपको ये कंडीशन सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की समझ में आई होगी. डेमोक्रेसी के बारे में और जानने के लिए stay tuned for my next lecture in which I'll be covering merits and demerits of democracy. Thank you.